Assalamu alaikum students, I hope you are doing very well and greetings to all. The title is showing on your screen and you are getting idea about today's lecture, that is Oedipus text by Sophocles. The study of this drama from Greek literature is very important because this is the core pillar of your syllabus in BS English Literature or Master in English Literature. And it is necessary to understand or to read this drama because Greek drama is basics of or fundamental study of English literature. तो अगर आप इसके बारे में पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हुए आप अरिस्टोटल उसकी थ्योरी को अप्लाई करेंगे और उसके जो है वो ट्रेजेडी के एलिमेंट्स को रीड करेंगे, यूनिटीज़ को डिस्कस करेंगे, so you would be enabled to study the further drama and novel in your whole curriculum. So first it is necessary to know about Sophocles. Sophocles was the most famous dramatist or author of Greek time period during the 497 BCE to 406. And at that time there were two other famous dramatists. These were the Aeschylus and Euripides. ठीक है, ये तीन ज़्यादा फेमस हैं और जब आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो देने के लिए जाते हैं तो आपको इन दोनों के बारे में भी जो है अलॉन्ग विद Sophocles इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. और फर्दर Sophocles wrote 120 plays but only 3 plays are very famous till the days, that is Oedipus Rex, एंटीगोन एंड इलेक्ट्रा. इलेक्ट्रा जो है वो इसके ऊपर एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि Oedipus Rex से Oedipus कम्प्लेक्स सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वो थ्योरी प्रपोज की थी और उसी से नेक्स्ट थ्योरी जो है वो प्रपोज कार्ल यूंग ने की थी जो कि इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है, दैट इज़ रिलेटेड टू Oedipus कम्प्लेक्स. ठीक है, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन Oedipus Rex को जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ Oedipus कम्प्लेक्स. So Sophocles is also important because he introduced the complex characters, interactions, and he also made the use of chorus, making dialogues in his dramas. And further, his themes revolves around fate, free will, human suffering, and limits of human knowledge. अगर आप ये नॉवल पढ़ते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को जो है वो एक दफ़ा अगर आप पढ़ने के बाद या इस लेक्चर को सुनने के बाद दोबारा इस स्लाइड पे आएंगे तो यू विल बी एबल टू गेट द आइडिया अबाउट दीज थीम्स. एंड डेफिनेटली ही इज़ द पायोनियर ऑफ ट्रेजेडीज since the Greek literature, so he is having the great influence on literature, philosophy, and theatre of this day. Now, briefly, we will having the introduction of Oedipus Rex. This introduction is also important for MCQ's perspective for competitive exams or also for your syllabus or for your academic examination. So Oedipus Rex. Oedipus Rex, or also known as the Oedipus the King. It is a tragedy that is by Sophocles and it is first written or performed in 429 before Christ. And the setting is in the royal house of Thebes. Thebes basically जो है वो सिटी है एंशियंट ग्रीक के अंदर, तो वहाँ के अंदर जो है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है प्लेस के लिए और थिएटर के लिए. तो यहाँ वहाँ के रॉयल हाउस में विद इन अ डे जो है वो प्ले किया गया था ये. एंड दिस प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ द किंग ऑफ द थीव्स हु ट्राइज टू सेव द सिटी फ्रॉम प्लेग. ठीक है, उसमें प्लेग में से जो है वो सिटी को सेव करता है बट ही वॉज द ओनली रीज़न ऑफ दैट प्लेग. और वो जो है वो एक तरह से हमार्शिया की ट्रम्प को भी फिन करेगा क्योंकि उसके अंदर अपनी मिस जजमेंट आ जाती है, वो खुद उसका रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेग का लेकिन उसको पता नहीं होता. नेक्स्ट जो है वो
He discovers himself unknowingly killed his father and married his own mother. This is the central theme और central idea around the story revolves, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है। और उसका जो फेमस ये जो प्ले है वो किसके लिए फेमस है? फेट, फ्री विल और ह्यूमन ब्लाइंडनेस टू ट्रूथ के लिए। और इसके अंदर दूसरी जो है वो ड्रामेटिक आयरनी है, जिसमें हम रीड करते हुए हमें ये समझ आ रही है, और इवन एट दैट टाइम द पर्टिकुलर और टारगेटेड ऑडियंस आल्सो knowing what is going to happen or what is the truth, but the character or protagonist was unaware। ठीक है, तो ये एक तरह से आपके पास क्या है कि ये भी एक अरिस्टोटल की जो है वो ट्रेजेडी की ड्राम उसको फुल। और दूसरा ये आपके पास एक तरह से ड्रामेटिक आयरनी भी है, और इस ड्रामेटिक आयरनी को हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट इज समरी। अब एक और चीज़ कि डेफिनेटली एवरी ड्रामा और एवरी प्ले इज हैविंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा। अभी हमारे पास दिस प्ले स्टार्टिंग फ्रॉम द मीडियास रेस। मीडिया रेस मीन अभी हमारे पास स्टार्ट की कहानी, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम जो है वो बिगनिंग उसकी जो मीडिया रेस है वो सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इडिपस आता है, और बाद में उसका जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है वो आएगा, और फिर उसका एंड आएगा। सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम थीब्स। थीब्स इज़ एन एंशियंट सिटी इन सेंट्रल ग्रीस। अब यहाँ पे जो है वो आई मैंशन बिफोर, थीब्स इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर थिएटर एंड परफॉर्मिंग द ड्रामा। अब उस सिटी के अंदर जो है वो एक रॉयल हाउस होता है। उस रॉयल हाउस में जो है वो एक किंग होता है, उसका नेम होता है इडिपस रेक्स, इडिपस द किंग। अब वो इडिपस द किंग वहाँ पे कैसे बादशाह बनता है कि वो जो है वो वहाँ पे आता है ट्रैवल करके थीब्स के अंदर, और जब वहाँ पे थीब्स में ट्रैवल करके आता है तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि उस सिटी में एक स्फिंक्स है। ठीक है, स्फिंक्स मीन स्फिंक्स वाज लाइक अ मॉन्स्टर, जिसका अगर आप पिक्चर देखें तो उसका लोअर बॉडी पार्ट इज़ लाइक अ लॉयन एंड अपर बॉडी पार्ट इज़ लाइक अ फीमेल वुमेन। ठीक है, जो कि एक ह्यूमन की तरह का है। तो वहाँ पे वो होती है स्फिंक्स, और स्फिंक्स जो है वो शी गिव्स रिटर्न टू एवरीवन। और अगर कोई रिटर्न जो है वो उसको बता देता है, सोल्व करता है, ही वुड बी अलाउड टू एंटर इन थीब्स, और अगर नहीं है तो वो उसको जो है वो अलाउ नहीं करती। और मिथ में ये है कि वो उसको जो है वो मार देती है। तो यहाँ पे जो है वो जब इडिपस भी वहाँ पे थीब्स में आता है। अब इडिपस के पीछे एक स्टोरी है, वहाँ पे क्यों थीब्स में आता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी हम यहाँ पे अभी मीडिया स्ट्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी। सो अब यहाँ पे देखें कि स्फिंक्स जो है वो रिटर्न इडिपस को भी इन द सेम वे रिटर्न देती है, और उस रिटर्न में उसको पूछती है कि वो कौन सा एनिमल है जो सुबह को जो है वो 4 टांगों पे चलता है, और दिन में जो है वो 2 टांगों पे चलता है, और रात में जो है वो 3 टांगों पे चलता है। तो इडिपस जो है इस जो रिडल है उसको सॉल्व करता है, और वो कहता है दैट इज़ ह्यूमन बीइंग। जो जब बच्चा होता है क्रॉल करता है और 4 अपने अपने बाजुओं को भी यूज़ करता है और अपने लेग्स को भी यूज़ करता है, दैट इज़ 4 लेग्स। और उसके बाद वो जब जवान हो जाता है तो ही वॉक्स ऑन 2 फीट। और जब उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है तो ही वॉक्स ऑन 2 फीट अलॉन्ग विद अ स्टिक, सो दैट दीज आर द 3 लेग्स। तो वो जब इस पे आता है तो यहाँ पे जो है वो ह्यूब्रिस स्फिंक्स जो है वो एरोगेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसका अपना ही एक तरह से ट्रेजिक फ्लॉ हो जाता है। मार्टिया जो है वो स्फिंक्स पे भी अप्लाई हम कर सकते हैं ट्रॉम, और वो अपने आप को जो है वो मार देती है, और इस तरह से जो है वो स्फिंक्स से सारा जो है वो थीब्स जो है वो फ्री हो जाता है। अब दूसरा ये है कि जब वो देखते हैं लोग कि इडिपस जो है ही वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही इज़ एबल टू वेयर द क्राउन, तो वो क्या करते हैं कि उसको वहाँ का बादशाह बना देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो वहाँ थीब्स का बादशाह था किंग लॉइस, उसका जो है वो मर्डर हो जाता है।
अब उसका मर्डर भी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी फ्रॉम मीडिया स्ट्रेस। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जब बादशाह बनता है तो उसके पास एक दफ़ा रॉयल हाउस के अंदर जो है वो प्रीस्ट का ग्रुप आता है। ठीक है, अब प्रीस्ट का जब ग्रुप आता है तो वो आके कहते हैं कि दे वर क्वाइट इन अ फिक्स बिकॉज देयर वाज ब्रोक आउट ऑफ अ प्लेग। अब उस प्लेग में क्या होता है कि अब उसमें जो है वो बच्चे नहीं पैदा होते, उसमें जो है वो या तो वो बिफोर बर्थ उनकी डेथ हो जाती है और वुमेन की डेथ हो जाती है, या फिर जो है वो आफ्टर बर्थ बेबीज़ की डेथ हो जाती है। तो वो कहते हैं कि हमें जो है वो इसका सलूशन चाहिए, और इस सलूशन के लिए वो क्या करता है, अब उसको पहले पता हो रहा होता है कि प्रीस्ट का ग्रुप आता है तो वो अपने ब्रदर इन लॉ जो है क्रियोन उसको बुलाता है और उसे क्या उसके सामने सारी स्टोरी रखता है, उसको बताता है और उसको कहता है कि तुम जो है वो डेल्फी, डेल्फी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस बिकॉज इट वाज द रेजिडेंट ऑफ गॉड अपोलो। ठीक है, द हेड ऑफ गॉड। तो वो कहता है कि उसके पास जाओ और उससे एडवाइस लेके आओ। तो वो जब उसके पास आता है तो वो उसकी एडवाइस लेके आता है तो वो उसके लिए बताता है कि किंग का जो मर्डर हुआ था तो उसके लिए जो है वो किंग के मर्डर की वजह से जो है यहाँ पे प्लेग फैल गई है। तो अब जो है वो हमें इसके मर्डर को फाइंड आउट करना है, सर्च आउट करना है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे एक मिथ है, क्रियोन ने उसको बताया और प्रीस्ट के ग्रुप ने कि इट वाज अ मिथ दैट सम थीव्स और ग्रुप ऑफ थीव्स किल्ड और मर्डर किंग लुइस। ठीक है, अब इडिपस जो है बिकॉज ही वॉज क्वाइट सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, तो वो कहता है कि ही टू कैन नॉट, और वो कहता है कि मैं जो है वो जितने लोग जो जिसने भी मर्डर किया है आई विल सर्च दैट पर्सन, और जो ऐसा शख्स जो जानता भी है कि किसने उसका मर्डर किया है और बता नहीं रहा तो मैं उसको एक्साइन कर दूंगा, ही वुड नॉट बी अलाउड टू लिव इन थीव्स। और उसके लिए फिर क्रियोन उसको सजेस्ट करता है हु टेक इडिपस शुड टेक असिस्टेंस फ्रॉम ब्लाइंड प्रॉफिट टायरेसियाज। अब जब टायरेसियस जो है उसको बताता है, और टायरेसियस जो है बेसिकली मिथ्स के अंदर नॉट मेंशन इन द बुक, ये भी जो है वो एक फीमेल ओरेकन टाइप होता है, लेकिन ये इसको कर्स होती है 7 ईयर के लिए फ़ीमेल की। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि ये ब्लाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इडिपस जो है वो उससे हेल्प लेता है, लेकिन टायरेसियस जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है उसकी हेल्प करने से बिकॉज टायरेसियस वाज ब्लाइंड। यहाँ पे एक आयरनी की गई है, और ब्लाइंडनेस जो है यहाँ पे पैराडॉक्स भी है, ही वाज ब्लाइंड बट हमारे पास आप कह सकते हैं कि although he was blind yet he is having that true insight, he knows the truth। तो वो क्या करता है, वो उसको मना कर देता है कि वो उसको नहीं ट्रूथ बताएगा, जिससे जो है वो उसको काफ़ी कर्ज करता है, बुरा भला कहता है इडिपस। लेकिन फिर टायरेसियस जो है वो क्या करता है कि उसको भी एक कर्ज करता है कि द पर्सन हु वुड नो द ट्रूथ और द पर्सन हु इज़ द मर्डर ऑफ किंग लुइस ही वुड आल्सो बी ब्लाइंड। तो यहाँ पे वो कह के चला जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इडिपस और क्रियोन में जो है वो एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इडिपस जो है वो उसके ऊपर उसको ब्लेम करता है ही वाज द कंपेनियन ऑफ टायरेसियस, कि वो भी उससे जो है और वो मिला हुआ है टायरेसियस के साथ और वो जानता है कि वो वाज द मर्डर। लेकिन ऑन द सेम पॉइंट वहाँ पे जो कास्टा की एंट्री हो जाती है, जो कास्टा वाज द वाइफ ऑफ इडिपस रेक्स एंड शी वाज द एक्स वाइफ ऑफ किंग लुइस। ठीक है, एंड शी वाज सिस्टर ऑफ क्रियोन, और वो वहाँ पे शी चार्ड बोथ ऑफ देम, और वो कहती है कि देयर वाज ऑलरेडी ब्रोक आउट ऑफ प्लेग इन द थीब्स, तो तुम लोगों को मज़ीद जो है वो कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए और डिस्प्यूट को अवॉइड करो, जिससे क्रियोन को वहाँ से भेज देती है। और जो है वो इडिपस को भी समझाना स्टार्ट करती है दैट ही मस्ट नॉट बिलीव ऑन द प्रोफेसीज, एवरी प्रोफेसी इज़ नॉट करेक्ट और नॉट ट्रूथ। तो वो अपनी फिर स्टोरी बताती है, कहती है कि जब
मुझे भी प्रोफेसी की गई थी कि मेरा बेबी होगा, बेटा होगा, जो कि अपने ही बाप को मारेगा और मेरे से शादी कर लेगा। और वो 3 दिन का बेटा था, जिसको मैंने फिर अपने सर्वेंट को दिया, और सर्वेंट जो है वो उसको माउंट कैथरियन जो है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नेम सेपरेट, वहाँ पे छोड़ आया था। और उसके बाद जो है वो जो कास्टा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इडिपस जो है उसको बताता है कि हाँ, मुझे भी एक प्रोफेसी मिली थी जिसमें ये था कि मैं अपने बाप को मारूंगा और मैं अपनी वांदा को अपनी मदर के साथ शादी कर लूँगा। तो और उसके पेरेंट्स उस टाइम पे जिनका बताता है, दीज वर द किंग पोलिबस और क्वीन मेरोप, जो कि कोरिंथ के बादशाह होते हैं। दिस वाज द सिटी आल्सो इन ग्रीस। तो जब लेकिन सडनली उसको खबर मिलती है कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो जब उसके पेरेंट्स की डेथ होती है तो उसको जो है वो जिस मैसेंजर ने उसको जो है वो डेथ के लिए बुलाया, डेथ आके उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो दोबारा वो उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं थे। और यही वो मिथ है। यहाँ से ही जो है वो इडिपस को याद आता है कि जब उसको मिथ दी थी और वो एक दिन जो है वो नशे में था काफ़ी ज़्यादा, ही वॉज क्वाइट ड्रंकन। तो उसको जब किसी ने कहा, कोई इवेंट था उनका, तो उसको किसी ने कहा कि पोलिबस तुम्हारा एक्चुअल बाप नहीं है। तो वो इस मिथ से बचने के लिए क्या करता है कि वहाँ से निकल जाता है गुस्से के साथ। और उसके बाद वो क्या करता है कि जब गुस्से से निकल जाता है तो वो ठीक पहुँचता है, तो वहाँ पे जो है वो ट्रिपल क्रॉस रोड होते हैं, 3 रास्ते बने होते हैं जो कि एक ही रोड के साथ लगते हैं। तो वहाँ पे जो है वो 4 लोगों का ग्रुप होता है, जिसमें बादशाह के साथ उसके 3 सर्वेंट भी होते हैं, और वो अननोइंगली जो है उनका मर्डर कर देता है, ठीक है। दैट इज़ परपेटिया, जो कि उसका उसका उसको जो है वो रिवर्सल ऑफ फेट यहाँ पे आ रहा है। अब उसके बाद जब वो उसका मर्डर कर देता है अननोइंगली, तो फिर उसको अब यहाँ पे थोड़ा सा जब वो आके मैसेंजर बताता है कि तुम्हारे फादर नहीं थे एक्चुअल में, तो उसको थोड़ा सा भी रियलाइज़ होना शुरू होता है कि अब जो है वो रिवर्सल ऑफ फेट स्टार्ट हो गई है। क्या पता वो मेरे पेरेंट्स तो नहीं थे, तो जिसको मैंने मारा है क्या पता वो मेरा बाप हो और ये मेरी माँ हो। तो यहाँ पे जो है वो अब अपने एनाग्नोसिस जो है वो रिकग्निशन की तरफ आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट वो क्या करते हैं कि इसके बाद जो है वो जिस सर्वेंट को जो है वो जकास्टा ने अपना बेटा दिया होता है 3 दिन के लिए, 3 दिन का, उसको बुलाती है। वो बताता है ट्रुथ कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक बच्चे को मारूं, तो मैंने उसको जो है वो माउंट कैथरियन जो है उसके ऊपर छोड़ दिया था, जो कि कोरिंथ के पास है। तो वहाँ से एक जो है वो शेफर्ड जो है वो किंग पोलिबस और क्वीन मेरोप के बेबी नहीं होता, तो वो उनको जो दे देता है। तो यहाँ पे एडॉप्टिव फादर है, रियल फादर नहीं था पोलिबस। तो अब वो बताता है कि हाँ, तुम्हारा नाम मैंने इडिपस भी इसलिए रखा था क्योंकि तुम्हारे पाँव उस टाइम सूजे हुए थे। तो यहाँ पे स्वन फीड जो है वो इडिपस की मिजरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो ट्रुथ की रेवलेशन हो जाती है। और जब उसको पता चलता है जो कास्टा को वो मेरा बेटा है, तो वो फ़ौरन ही वहाँ से जाती है और अपने आप को लटका के सुसाइड कर लेती है, ठीक है। और ये स्टोरी जो है, ये सीन वहाँ पे परफॉर्म नहीं किया गया थिएटर में। दिस सीन वाज नरेटेड बाय द कोरिस एट द एंड ऑफ द प्ले, ठीक है। और उसके बाद आल्सो इन द एंड जब उसको ढूंढता हुआ इडिपस उसके पास जाता है, तो वहाँ पे उसका जो देखता है कि उसकी मदर ने सुसाइड की है, तो अब जो है वो उसके ब्रोच से अपनी आंखों को ब्लाइंड कर देता है, और क्रियोन जो है वो इडिपस को एक्साइल कर देता है वहाँ से। दूसरा यहाँ पे जो है वो ब्लाइंडनेस जो है इसको भी सिम्बोलाइज किया गया है। आल्दो Tiresias was a blind, but he was having a sight. Another paradox, Oedipus is having a sight, but he is still blind from the truth. ठीक है।
सो दिस इज़ द समरी. नेक्स्ट वी नीड टू स्टडी द थीम्स. अब थीम्स हमारे पास जो है वो फेट वर्सेस फ्री विल. You just need to remember the heading, and whenever you are appearing in the exams you can because being a student of literature you must be able to analyze the things, you must be able to think critically. You just remember the headings or bullets points and explain by yourself, just take the concepts. तो फेट वर्सेस फ्री विल. अब यहाँ पे बताया गया है कि मैन इज़ पपेट इन द हैंड ऑफ गॉड, कि जो भी हो आपकी जो फ्री विल होती है लेकिन आपने अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना ही होता है. ब्लाइंडनेस एंड साइट. दूसरा इग्नोरेंस वर्सेस ट्रूथ. अब यहाँ पे जो है वो सेम एक्जैक्टली वही चीज़ जो कि Tiresias जो है he was blind but he was having the sight. This is also human being example. The person who is suffering from hubris, he is having the sight but he is not availing of the knowledge. और जो person जो है वो blind होता है, the person who shows himself down to earth, he is knowing the more truth. ठीक है. दूसरा सर्च फॉर ट्रूथ. अब यहाँ पे सर्च फॉर ट्रूथ जो है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. अब यहाँ पे सर्च तो एवरीथिंग इज़ हैविंग द प्रोज एंड कॉन्स एज वेल. if the search is having the benefits but search is having or search is leading to the suffering of human beings. Or next hubris. Hubris Oedipus determination and arrogance leads to his downfall. ठीक है, जो कि उसका हमार्शिया जो है वो उसको मीट करिए. और नेक्स्ट हमारे पास आता है सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म स्वॉलन फीट. अब स्वॉलन फीट के अंदर इडिपस कार्ड फीट सिम्बोलाइज हिज इनएस्केपेबल फेट. अगेन इट इज़ रिलेटेड टू द थीम ऑफ फेट वर्सेस फ्री विल. You just need to remember the points and elaborate the things in a different way. और क्रॉस रोड्स जो है वो 3 रोड्स हैं जो हैं दैट इज़ लीडिंग टू ह्यूमन डेस्टिनी, फेट, चॉइस एंड टर्निंग पॉइंट. ह्यूमन जो है वो इसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता रहता है. नेक्स्ट ब्लाइंडनेस जो कि ट्रूथ और इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. फर्दर एनालिसिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू डिबेट. और इडिपस जो है वो ट्रेजिक हीरो है, नोबल था, डिटरमेंट था, बट ही हैड टू मेड हिज doomness because of the hubris and prophecy. The next is showing human effort collides with divine will. Again we are puppet in the hands of God. उसके बाद dramatic irony. As I mentioned, dramatic irony is that when the audience is knowing what is going to happen but the characters are unknown about the proceeding of about the moving of the action or moving of the play. तो यहाँ पे भी ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट की गई है. उसके बाद वी कैन अप्लाई एरिस्टोटेलियन टर्म्स विद इडिपस रेक्स एग्जाम्पल. फर्स्ट हमार्चिया. हमार्चिया हमारे पास जो है वो हमार्शिया में हमारे पास इडिपस ह्यूब्रिस आता है. और हमार्शिया और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि एक जजमेंट होती है. ठीक है, हमारी रॉन्ग जजमेंट होती है जिससे हमारा ट्रेजिक फ्लॉ होता है प्रोटैगनिस्ट का. तो यहाँ पे भी रॉन्ग जजमेंट थी इडिपस की, जिसकी वजह से जब उसको प्रोफेसी मिल गई थी तो उसको चाहिए था वो शादी ना करे, बट उसने अपनी फ्री विल शो की जो कि बेसिकली उसकी डेस्टिनी भी थी. पर बेटा मोमेंट इडिपस रियलाइज हिमसेल्फ इज़ द किलर ही हैज़ बीन सीकिंग. यहाँ पे जब उसके पास रिवर्सल ऑफ फेट आता है तो उसका मोमेंट उसको रियलाइज़ हो जाता है. उसके बाद इग्नोरेंस. उसके बाद इडिपस जो है वो ट्रूथ को रिकवर करता है, डिस्कवर करता है. और उसके बाद उसको पता चलता है ही वाज सन ऑफ लॉइस एंड जोकोस्टा. देन कैथारसिस. अब कैथारसिस मीन प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन, रिलीज ऑफ इमोशन. अब इससे क्या होता है कि इसको देख के रीड करके जो ऑडियंस है वो पिटी फील करती है, वो अफसोस फील करती है. उसका जो लास्ट पे ट्रेजिक एंड होता है उससे जो है वो ऑडियंस का कैथारसिस हो जाता है कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए.
Next, Aristotle, according to Aristotle, drama is having or piece of writing is having three unity: unity of action, unity of time and unity of place. अब यहाँ पे भी यूनिटी है कि मेन जो है वो एक्शन के इडिपस जो है वो सर्च करता है मर्डर के लिए, एक प्रॉपर जो है वो यूनिटी में चल रहा होता है, अपने एम को पूरा करता है. नेक्स्ट यूनिटी ऑफ टाइम, उसके बाद यूनिटी ऑफ टाइम आता है जिसमें इवेंट्स अनफोल्ड विद इन अ सिंगल डे. ठीक है, ये नहीं कि ऑडियंस को बार बार बना रहे हैं कि आप यहाँ पे आके अब ये टाइम देखें और एपिसोड्स के फॉर्म में आ रहे हैं. नो, देयर इज़ यूनिटी ऑफ टाइम कि ईच एक्शन इज़ परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस. उसके बाद यूनिटी ऑफ प्लेस. अब यूनिटी ऑफ प्लेस में इंटायर प्ले टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस इन थीब्स, के एक ही जो है वो जगह पे हो जाती है उसकी सेटिंग. Next, influence. What is the purpose of the writing? This is also necessary to study. So, the influence was about the belief of God. It is having the religious perspective or limits of the human knowledge, human relation, human tradition, and human authorities. Or there is important lesson through the theatre, a key part of Athenian festivals. और ये प्लेस जो हैं वो किंग और क्वीन के लिए ज़्यादा प्ले किए जाते थे उस टाइम पे, और दूसरा जो है वो फेस्टिवल्स के ऊपर प्ले किए जाते थे. एंड इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड्स. तो ये हमारे जो है वो एग्जिस्टेंशियल थीम को भी मॉडिफाई करता है कि हम जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी अपनी फ्री विल है या नहीं है. और इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू साइंस, साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिक्स, सर्चिंग फॉर ट्रूथ, फेसिंग अनकम्फर्टेबल रियलिटीज़. हम जितना ज़्यादा ट्रूथ जान रहे हैं, हम उतना ज़्यादा जो है वो हसल एंड बसन क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. एंड देयर इज़ फ्राइड्स इडिपस कम्प्लेक्स वाज इंस्पायर्ड बाय दिस प्ले. अब फ्राइड का मैंने मेंशन किया था स्टार्ट में, इडिपस कम्प्लेक्स, जिसमें जो है वो बताया गया है कि इट इज़ नेचुरल टू हैव attraction towards the opposite sex and to have the possessiveness, and this possessiveness is starting from the birth of a baby. अब इसमें जो है वो बताते हैं because there is an attraction towards the opposite sex. For example, a young or a boy is having in the psychosexual age having the attraction towards the mother, और a daughter is having the attraction towards the father, that is electra complex. बॉय के लिए जो कम्प्लेक्स जो है वो अट्रैक्शन जो है वो इडिपस कम्प्लेक्स में है, और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो है वो कार्ल युंग ने दिया था, जिसमें डॉटर इज़ हैविंग द अट्रैक्शन टूवर्ड द फादर. और यहाँ पे भी दैट इज़ इडिपस कम्प्लेक्स. इडिपस भी अपने आप में ऐसे ही होता है जो कि अपने फादर से जेलस फील करता है एंड हैविंग द अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मदर. उसके बाद दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द ओपनिंग लाइन ऑफ द फेमस प्लेस और ड्रामाज व्हेन एवर यू आर अपेयरिंग इन द जॉब इंटरव्यू और इन कंपैरेटिव एग्जाम्स. ठीक है, और यहाँ से ये मीडिया से ही स्टार्ट हो रहा है व्हेन इडिपस इज़ एड्रेसिंग to the people or calling them my children. Or it is important to remember the famous quotes to refer, and this is the most important line. The ending line of the quote is, "Can no man happy until he is dead." If you have any other question, you can ask in the comment. So, thank you.